सिमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज अ जीपी। और इस जीपी के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस में देयर इज अ क्वेश्चन, इट इज अ सीरीज गिवन टू यू, दिस इज 1 + 4 + 16 + 64 dot 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 is equals to 5461. This means the sum of the series of the GP is equals to 5461. You have to find out that how many terms are there, the number of terms in this series. तो उसको पता करने के लिए we know that the formula for the sum of series is equals to a bracket rn minus 1 by r minus 1, where r is modulus of r is less than 1. तो इस केस में हमें पता करना what is a, what is r and what is n तो हमें पता करना है। तो Sn is equals to 5461, a is equals to 1 and r is equals to 4 by 1, you will be having 4. क्लियर? अब व्हाट इज ए, ये तो 1 है, मैं उसको नहीं लिखा हूं, लिख देता हूं। चलो r is 4 power n minus 1 by 4 minus 1 is equals to the sum of the series which is equals to 5461. RHS को देखें, सॉल्व करें, इट विल बी, मैं यहाँ करता हूँ, दिस इज 4n minus 1 by 3 और 3 को मैंने 5461 से मल्टीप्लाई कर दिया, you will be having 549. 4 power n is equals to 3 1 3, 3 6 18, 3 4 12 13, 3 1 11, 3 5 15, 1 16, 1 6 3 8 3, minus 1 था इस तरफ, उस तरफ जाके बैठेगा, it will be plus 1. ऐड कर लेंगे, you will be having 1 6 3 8 4, which is equivalent to 4 raised to power 7. ये जो है 4 raised to power 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 4 raised to power 7 के इक्वल हो जाएगा, which means n is equals to 7. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि n जो है it is equivalent to 7. In this way you can do this question. देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, you are given the sum of the series, आपके पास दी हुई है सीरीज which is in GP, और उसमें बताया गया है कि उन सबका सम है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सम है 315. The first term is 5, the common ratio is 2. You have to find out the number of terms as well as you have to find out the last term, or you can say the nth term, as n is the number of terms. Here in this case we are having r is equals to 2, therefore we know the sum of the formula of GP which is equivalent to Sn is equals to a, this is Rn minus 1 by r minus 1. Here a is 5, r is 2 power n minus 1 upon 2 minus 1 is equals to 315. This is 315. Now this becomes 5. A 5 will come in the denominator of 315. This is 2 minus 1 is 1. It is of no use कि हम इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। This is 5. सॉल्व करेंगे इसको, you will be having 5 6 are 30, 15 5 3 are 15. This is n 2 raised to power n minus 1 is equals to 63. Now 2 power n is equals to 63 plus 1 64. This is 2 raised to power n is equals to 64. Now how much is 64? 64 is equals to 2 power 6. What it means? It means that we are having n is equals to 6. n हमारे पास आ गया 6. तो टोटल नंबर जो हमारे पास हैं, अगर जो ये सीरीज बनेगी उस सीरीज में जो टोटल नंबर हैं, टोटल टर्म्स हैं, वो 6 है। अब आपको कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द लास्ट टर्म, और यू कैन से nth टर्म। वी नो द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ अ जीपी इज a r n minus 1. Here what is a? A is 5 and what is r? R is 2 raised to power n minus 1, n is 6 minus 1. This is 5 into 2 raised to power 5. 2 raised to power 5 is, we know it is 32, 5 is 15 and 1 16. 16 is the nth term. तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आया हो कि the sum of a series, जो उसकी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, उन सबका जो सम है it is 315. a आपके पास आ रहा है 5, r आपके पास दिया हुआ है 2. You have to find out n as well as you have to find out the nth term. सबसे पहले काम आपने क्या करा, सम का फॉर्मूला लगाया, सम के फॉर्मूले को उस तरीके से सॉल्व करो, आपके पास इससे आपके पास आ गया n is equals to 6. n जो 6 आया उसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया nth टर्म में,
टी एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन में, और आपने सॉल्व करा और आपके पास जो सिक्स्थ टर्म है, कौन सी टर्म है? दिस इज द सिक्स्थ टर्म बिकॉज इट इज T6, ठीक है, T6 जो है व्हिच इज द लास्ट टर्म आल्सो, इट इज 160। चलिए, उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एन इंक्रीजिंग जीपी, जीपी इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 66। एक फर्स्ट टर्म, एक लास्ट टर्म, और वी कैन सी द nth टर्म, वो 66 है उनका सम। द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड लास्ट बट वन मींस पेनल्टीमेट जो टर्म है वो और सेकंड टर्म, उनका प्रोडक्ट इज 128 एंड द सम ऑफ टर्म्स इज 126। और जितनी भी ये टर्म्स हैं एंड टर्म्स हैं, उन सब का जो सम है इट इज 126। यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज ऑफ द जीपी। चलिए, अब मैं पहली वाली बात को लेकर चलता हूं। दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट द लास्ट टर्म इज 66। द फर्स्ट टर्म इज T1 plus Tn is equals to 66. What is T1? It will be A. What is Tn? AR n minus 1 is equals to 66. This is the first point ये हमारे पास आता है। Clear है? Now come on to the second point. Second point says the product of second and the last but one. Second, last product multiply. Last but one, last term is nth term, एकम n minus 1 but one penultimate term which is equals to 128. Second term को हम लिख सकते हैं AR and it is multiplied by AR n minus 2. n minus 1 होता है, minus 1 will be minus 2. So it is equal to 128. Solve करके देखें, it will becomes A square into R raised to power n minus 1 is equals to 128. This is the second condition. दो हमारे पास आ गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। लेट्स गो विद द थर्ड इक्वेशन एंड द सम ऑफ टर्म्स इज 126 यानी Sn is equals to 126 increasing order में। increasing order what it means that the R will be always positive, ठीक, modulus of R is greater than 0, greater than 1. Clear? Now what we have to do here is this is A R n minus 1 by R minus 1 126. Now we are having three equations and we are having three unknowns. Equation first, equation second, and this is the equation number third. Clear? ये मेरे पास आ रही है तीन इक्वेशन। क्लियर है? चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस चीज को देखूं, इसको फर्दर लिखूं, इट कैन बी रिटन एज A into A R n minus 1, ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर है? इट्स वेरी सिंपल, राइट इट इज इक्वल्स टू 128। ठीक है, और यहां पर मेरे पास AR n minus 1 जो आया इट इज इक्वल्स टू 66 minus A। क्लियर है? और 66 minus A को आई substituted here, A 66 minus A is equals to 128. क्लियर है? आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, this becomes A square minus terms plus 66A minus 128 is equals to 0। और अच्छे से कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। Let's go with another, we can take this A square minus 66A plus 128 is equals to 0. We know 64 to it is 128. We can write it as A square minus 64A minus 2A plus 128 is equals to 0. In the scene we can write it as that the two here what we are doing is this is a middle term factorization. This is a middle term split, what we call in the cases of the quadratic equation.
Now here this is a square minus 64a minus 2a plus 128 is equals to 0. Now here what will be going here is a minus 64. This is minus 2. We are having a minus 64 is equals to 0. Now if we go further, this is a minus 2, a minus 64 is equals to 0. Solve करते हैं, either a is equals to 2 or a is equals to 64 by equating both the parts to 0. दोनों parts को अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे, and we will be having a equals to 2 and a is equals to 64. अब हमारे पास यहाँ तक का तो ऑप्शन आ गया। देखिए अगर मैं a लेता हूँ 64, तो मेरे पास ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम दिया हुआ है 66। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर, अगर पहली टर्म 64 है और ये कह रहा है इंक्रीजिंग जीपी है, तो 64 के बाद वाली जो टर्म होगी वो इंक्रीज होगी। अगर 2 से भी इंक्रीज होगी देन इट इज 128। तो फिर nth टर्म का सम और फर्स्ट टर्म का सम 66 कैसे आ सकता है? It is not possible. Therefore, we don't have to go with a is equals to 64. We have to just come with this is a is equals to 2 as the required answer for a. It means that the first term here in this series is a is equals to 2. Now what we have to do is we have to solve for the other parts. Other parts को हमें solve करना है and how these parts will be solved. चलिए इसको solve करने का मेथड देखते हैं। We have to find out the number of terms. अभी तक जो चीज हमारे पास हाथ में आई है वो हमारे पास है a is equals to 2 हमारे पास है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ रहा है। आपने देखा बच्चों इसमें जैसे हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, अब इसके आगे का काम हमारे पास है। Here it is a equals to 2, a equals to 64। तो अब हम जो कर रहे हैं, जैसे 64 को तो आपने कैंसिल कर दिया, कैंसिल इट इज नॉट रिक्वायर्ड। a इज इक्वल टू 2 पे हम लोग आ रहे हैं। अब मैंने a इक्वल टू 2 को कहीं ना कहीं तो सब मुझे पुट करना पड़ेगा। अरे आई पुट इट हियर, क्लियर? यहाँ पुट करता हूँ, आई विल हैव 2 r raised to power n minus 1, 66 minus 2, 64, ये वाला 2 नीचे चला गया, r power n minus 1, this becomes 32. You got r n minus 1 is equals to 32. क्लियर है? बड़े तरीके से। अब हमारा ना सेंट्रल पार्ट इज दिस, यहां मैं पहुंचता हूं। मेरे पास a 2 लिख दिया, r पावर n, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास r पावर n माइनस 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक काम कर सकता हूँ, r पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r पावर n माइनस 1 इंटू r, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास r बच जाएगा, और माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल्स टू 126, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 63, 2 3 से 6, तो 6 से 12, और ये इट विल बी 1। अब r पावर n माइनस 1 जो है वो आपके पास 32 है। फ्रॉम हियर, यहाँ से आप इसको लेके आएगा, दिस इज 32 इंटू r माइनस 1, 32 इंटू r is 32r अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 63। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ये माइनस 1 पावर में नहीं, माइनस 32r माइनस 1, 63r माइनस 63, तो 63 माइनस 1, 63r माइनस 32r, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चलो 331r, दिस बिकम्स 62। चले रहे, and then r will be 2। You got r is equals to 2। आपके पास दो चीजें आ गई, you got a is equals to 2, you got r is equals to 2। ठीक है जी, दो चीजें आपके पास आ गई है। अब you have to find out the value of n। n कैसे निकाला जाए, है ना? n निकालने के लिए कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं इसी को यहाँ से लेके चलूँ, या बल्कि इसको लेके चलूँ और ज्यादा बढ़िया रहूँगा। What
is a is 2 square, r is 2 power, n is n minus 1, 128. क्लियर? यहाँ पर 4 हो गया, 4 से काटेंगे दिस विल बी 32 हो गया। अगर मैं 2 के फॉर्म में लेके चलूँ इट विल बी 2 पावर n minus 1 is 2 power 5 and n minus 1 is equals to 5 you got n is equals to 6। तो तीन चीजों, all three things are with us। Find the number of terms। Number of terms is 6। If we have to find out a is 2, if we have to find out r is 2। 6 terms हैं। अगर हम देखें इसको कि what will be the series formed, तो we got a as 2, first term is 2, second term r is equals to 2, then second term will be 4, third term is 8, fourth term 16, fifth term 32, sixth term 64। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं तो यू गॉट 64। these two terms 2 and 64 you got 66। सेकेंड टर्म बट लास्ट बट 1 को मल्टीप्लाई करते हैं you got 128, 4 to 8 43 and the sum of the terms is 126। सबको ऐड कर लेंगे you will have 126। ठीक है, इन सबको ऐड करने का आपके पास आंसर आ जाएगा 126। इन दिस वे यू कैन इजीली डू ऑल द क्वेश्चंस। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms is to the of first 6 terms of a GP is 125 is to 152। Find the common ratio। You have to find out the common ratio। आपको इस केस में पता करना है कि कितना इसका common ratio है। जब आपके पास दिया हुआ है रेशियो, दिया हुआ है फर्स्ट 3 terms का सम टू द फर्स्ट 6 terms का सम की जो रेशियो है इट इज इक्वल टू 125 by 152 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द r। आपको r पता करना है। यू टू फाइंड आउट द कॉमन रेशियो। व्हाट इज s3? व्हाट इज s3? s3 इज व्हाट? फॉर द फॉर्मूला फॉर s3 a, हमारे पास सम का फॉर्मूला है तो मैं लिख देता हूं sn is equals to a rn minus 1 upon r minus 1। here a r n is here 3, first 3 terms, minus 1 upon r minus 1, a r 6 minus 1 upon r minus 1। clear? और which is equivalent to 125 is to 152। तो बहुत सारे काम तो उन्होंने अपने आप ही आसान कर दिया है। clear? everything will get cancelled। now जब ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, आपके पास जो बचा वो क्या बचा? You are left with r cube minus 1 upon r 6 minus 1 is equals to 125 by 152। क्या ये और सॉल्व हो सकता है? यस, और सॉल्व कर सकते हैं। r cube minus 1, r 6 को हम लिख सकते हैं r cube square minus 1 square। Furthermore, we can apply here the formula identity a square minus b square which will be equivalent to a minus b, a plus b। आपने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो अप्लाई की विच इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ पर अच्छा है। चलिए ना, यहाँ पर ऐसा करते साथ दिस r क्यूब माइनस 1 विल क्या कैंसिल और यहाँ पर आपके पास आ गया 125 by 152। चलिए क्या करें, बस टेक द रेसिप्रोकल 1 by r क्यूब प्लस 1 है, अपने इसको उल्टा लिख दिया r क्यूब प्लस 1। here that side 152 by 125 हो जाएगा। in the next step plus 1 will go there, 152 by 125 minus 1 सॉल्व करेंगे 152 minus 125 by 125 कितना आ गया 27 by 125। ठीक है, 152 minus 125 is 27, denominator is 125। r cube is equals to 27 by 125। r cube is equals to 3 by 5 whole cube।
because 3 cube is 27, 5 cube is 125. Power is same, equals to, sign is there, therefore we can say that R is equals to 3 by F. We have to find out the value of R, and here in this particular case R is equals to 3 by 5. बच्चों ये जो है ना, ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपी एंड जीपी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जब आप कर लोगे तब आपको लगेगा कि आपको ये चीजें आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है, बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रही हो, बातें आ रही हो, आपको क्लियर हो रही हो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा हो, then you can like them, you can share them, and furthermore you should subscribe them, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस भी कंटिन्यूसली मिलती रहे अनइंटरप्टेड।